competition, as we have been insisting, is skill building. So your idea, your story has got to you. I mean, you won that, but now what next? Since these stories have to be published, the first provision is that you yourselves will be working as editors, the first editors. You've written a story, but based on the feedback we give you, you have to sort of go back to your stories and rewrite it. Maybe not completely, because the idea is there, but whatever you missed, or whatever our jury members, our mentors have given you ideas. You've already attended one session, an online session, and two things came out of it. एक था कि आप अपनी कहानी को पकने दें, कि आपने कहानी लिख दी है, उसे थोड़े दिन छोड़ दें और दोबारा उस पर जाके देखें कि क्या रह गया है, कुछ आइडिया, कुछ कॉन्वर्सेशन, कुछ डायलॉग. और सेकंड, एक कविता मैडम ने हमें इम्पोर्टेंट थिंग बताई थी, डायलॉग्स. काफ़ी कहानियों में डायलॉग्स मिसिंग है कि आप एक रन ऑन, मतलब कहानी अच्छी है, ये बात नहीं है कि कहानी गलत है, बट जब कभी हम कैरेक्टर्स डालते हैं तो उनके आपस में बातचीत, जैसे आप लोग बातचीत करते हैं, तो दो चीज़ें हमारी बहुत उभर के आई थी. बाकी कैरेक्टर, थीम, एम्बियंस, उस सब पे उन्होंने बात की. सो उसी कड़ी को हम आगे आज बढ़ाएंगे. हमारे साथ 6 जूरी मेंबर्स थे. दो आप ऑनलाइन मिले, दो अब हमारे पास यहाँ हैं, डॉक्टर उषा बांदे मैम एंड गुप्तेश्वर सर. ठीक है, इन्होंने भी, हमारे पास 182 कहानियाँ आई थी, जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. सो सभी जूरी मेंबर्स ने 91 कहानियाँ पढ़ी थी, 3 मेंबर्स ने. और एक हमारे काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर आशुतोष, वो थे. और एक हमारी एजुकेशनिस्ट है, मिस नमिता लाल, तो वो भी इस जूरी की मेंबर थी. सो आई विल जस्ट स्टार्ट. आई विल इंट्रोड्यूस मैम. Ma'am has retired as a principal and former fellow of the Indian Advanced Studies. She was a professor of English in Government Girls School, Shimla, for almost 3 decades. College, RKB. RKB College now. And after retirement, she was invited to Vishwa Bharati Vidyapeeth, Shanti Niketan, as a visiting fellow. She has a special love for languages and is proficient in Hindi, English, and Marathi. Ma'am also does a lot of translations. She has authored over 18 books, and notable among them are books of stolen moments, celebrating life, Mehekti Bagia. Some of the books you can also find over here in the cafe. If you want to read, you can always borrow them. And her coffee table book on forts and palaces of Himachal Pradesh. It was co-authored with our noted artist from here, Professor M. Chatterjee. If you heard his name, he does a lot of artwork, and you see his paintings all over Shimla. Yeah. And joining us is Gupteshwar sir. Uh, he's from Bihar originally, but once he came to Shimla, Himachal, he was so inspired that for more than 30-35 years, he belongs to us now. So Himachal and hills are all interspaced into him. Uh, he was also a teacher. He's taught in many schools, government schools में इन्होंने पढ़ाया है, and mostly हिंदी का इनका काफ़ी ज़्यादा वो रहा है. And again, he's a writer. Mostly, he has written a lot of poems, and they have been published as books. His first book as a novel came out recently, Gantavya. So वो भी हमारे पास यहाँ पे है. And both ma'am and sir are recipients of awards. So it's a long list. So you can always look them up. And you ever want to contact them or you wish to speak to them, they're always free. They'll give you time. They'll share their experiences. They'll interact with you. Whatever feedback or stories you wish to share with them, they're always there. And they are patrons of Kiki also. So they always are. They're mentors for me also, because it's a learning process. Okay. So now moving on to the next section, we'll start. First, I like to ask Usha ma'am that maximum whenever we speak to children, they are stuck on an idea. So when they get an idea, how do they convert it into a story? That's a good question. Starts with idea. First of all, I will say that I read your stories. I don't know whosoever has written, and I was impressed by one thing, that at least you have got some sort of an idea, as you say. Based on that idea, and
First of all, congratulations to you that at least you have that spark in you to write. और भी तो बहुत लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब में ये स्पार्क नहीं होता। अब रहता है बात रही आइडिया। फ्रॉम वेयर डू वी गेट आइडिया, यू टेल मी। To our surroundings. Hmm? Surroundings. All around you there are ideas. Life itself is a story, and very very small incidents you get idea. These are our everyday life ideas. But at the same time, most important thing is you read. जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको अलग अलग आइडियाज आएंगे। ये नहीं कि हमने जो पढ़ा है उसको हमने नकल मार दी। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बट when we read, our vision expands. Now, what do we want for story writing? Now, say first of all, let us say young man, went to Mulk Raj Anand. बहुत बड़े राइटर हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो। And he said, "Sir, I want to write." Rajanand said, "Come on, take pencil and paper and start writing, and come to me in a day or two." He came back and he says, "Sir, पेज तो पूरा ब्लैंक है, कुछ नहीं समझा क्या?" उन्होंने कहा, "ऐसे नहीं लिखा जाता कि मेरे को स्टोरी लिखनी है और मैंने लिख दी। एक कोई जर्म होता है, जैसे दाना जर्मिनेट होता है ना, वैसे कोई आइडिया दिमाग में आ जाता है और वो जर्मिनेट होता है।" एक राइटर है ओ हेनरी, उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट राइट, और इवन मुल्कराज आनंद ने भी कहा था अलग शब्दों में, दैट यू कैन नॉट राइट सिटिंग इन एन आइवरी टॉवर। What you have to do, you have to come to the level of the people, you have to jostle with them, you have to be with them. Suppose you are in Shimla and lots of tourists are here, you want to write a story, but you can't write sitting at your home. You must know how they feel in Shimla. Some छोटा सा जर्म, अब जर्म कैसे लेना है ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद सर की बारी आई थी, भाई उनको इंतजार करना। एक मैं भी बार सीख रहा हूँ। किसी सेमिनार में मेरे साथ ऐसे हुआ, एक लेडी बैठी थी, तो वो काफ़ी दिल्ली के चाणक्यपुरी वगैरह में रहने वाली हाई फाई उसकी थी, मेरे साथ काफ़ी बातचीत होती रही उसकी। तो उसने ऐसे कहा, कहते हैं कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन पे बात कर रहे थे, सो यू अंडरस्टैंड डिस्क्रिमिनेशन ऑल ऑफ यू। So we were talking about discrimination, and she said that these ideas cannot be brought from above. They must spring from inside, and we have to teach this, young children. So she told me an experience where girl was studying. Over there, there were all diplomats, children studying in that school. So some were from Africa, some were from wherever, of course, people came. Their children were studying there. तो एक बारी उसकी बेटी घर आई और कहती है कि मम्मी, मैं एक हमारे इसमें ना नया बच्चा आया है, बड़ा गंदा है, हमने उससे बात करते। कहती क्या हो गया, गंदा क्यों है वो? पता नहीं, वो नहाता है कि नहीं, बिल्कुल काला है, ही मस्ट बी फ्रॉम सम अफ्रीकन कंट्री। और मम्मी सोचती हैं, इसको अगर मैं बताऊं कि ऐसे नहीं करना है तो उसका कोई असर नहीं होता, मुझको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने उसको बारबी डॉल चाहिए थी। सो बारबी डॉल, ऑल ऑफ यू नो, मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट यू, these are girls here. You know, बारबी डॉल कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज। तो मम्मी ने क्या किया, बिल्कुल डार्क कलर की बारबी डॉल लेके आ गई। और वो लड़की बोलती है, मेरे को नहीं अच्छी लगी, ये काली है, मेरे को तो अच्छी पूरी पूरी डॉल चाहिए। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम रहने दो, ये रियल बात बता रही हूँ, तुम इसको रहने दो, और जब मैं बाजार जाऊंगी तो इसको चेंज करके लाऊंगी। 2-4 दिन मम्मी देखती रही, उसके कमरे में रख दिया। अब बच्चों का ये होता है, उसके पास जाती थी, उसको उसके पास जाती थी तो बाल देखने की कोशिश, अगर वो डब्बे में बंद थी, बाल देखने की, वो धीरे धीरे उसको उसके साथ बड़ा प्यार होता है। उसकी फ्रेंड आती थी और दोनों मिल के उसके अब डॉल निकाल ली और खेलने लगी। फिर मम्मी आई, मम्मी ने देखा ये खेल रही है डॉल के साथ,
तो उन्हें बोला डॉल दे देना, मैं बाजार जा रही हूँ और मैं बदल के लाती हूँ। लड़कियां बोलती नहीं, डॉल नहीं बदलनी, ये हमको अच्छी लगती है। तो फिर ये हमारे साथ खेलती है, हमारे साथ बोलती है। तो फिर मम्मी ने समझाया कि देखो बच्चों, जिस स्कूल में भी चाहे काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो हम बुलिंग करते हैं ना स्कूल में, तो छोटे बच्चों की तो उसमें बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कहा ऐसे नहीं करना। अब ये कहानी उन्होंने मेरे को अपनी जीवन की सुनाई। अब ये आइडिया मेरे दिमाग में आ गया। ये तो बड़ी अच्छी कहानी बन सकती है उनके एक्सपीरियंस में। मैंने एक ना छोटी सी कहानी लिखी, गोरी सिल्की की ब्राउन बुल, और उसमें मैंने इंसान ले लिया क्योंकि वो कहानी हमको उन्होंने इंसान ने सुनाई थी। सो व्हाट आई मेड, इसमें छोटे बच्चों के लिए खरगोश, और खरगोश का स्कूल, और ऐसे ऐसे करके इसको चेंज कर दिया। सो व्हाट आई वांट टू से, आइडियाज आते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। आइडियाज को हमको फिर स्ट्रक्चर में बदलना पड़ता है। सो अप टू दिस नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू मैम। सर, I'd like to ask you कि जो हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे एक्सपैंड किया जाए। जैसे अब आपने भी कहानियां पढ़ी बच्चों की, तो कई बार क्या होता है बच्चे रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, एक बात शुरू करेंगे और चलते चलते वो कहीं डिस्कनेक्ट आ जाता है। तो वो एलिमेंट्स पे कैसे उनको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैडम को संबोधित करते हुए आप सबको यहाँ आप सबका स्वागत करते हुए और आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपकी कहानी इस संग्रह के लिए चुनी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उस पॉइंट पर आऊँ उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कहानी कहने की, लिखने की, कहने की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। बहुत पहले से ही हम लोग बचपन में अपने दादा दादी से कहानियाँ सुनते थे। बड़े हुए पाठ्य पुस्तकों में कुछ कहानियाँ, कविताएं पढ़ने को मिली और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को कहानियाँ लिखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे समय में ये सब कुछ नहीं था। पाठ्य पुस्तकों में कहानियाँ पढ़ते थे, उसी को देख करके हमारे मन में ये आता था कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। और जो दादा दादी हमें कहानियां बचपन में सुनाया करते थे, तो शायद बीज हमारे अंदर अंकुरित हो चुके थे उसी समय। उसको पल्लवित पुष्पित होने के लिए समय चाहिए था और वो हमें मिला हमारे विद्यालय में, हमारे अध्यापकों के द्वारा, हमारे प्रोफेसर के द्वारा। मनुष्य एक विवेकशील, वो पशु कहते हैं विवेकशील प्राणी है। बाकी लोगों से इसमें भिन्नता यह है कि उसको केवल पेट का खुराक नहीं, मस्तिष्क का खुराक भी चाहिए। आप ने इतिहास को पढ़ा होगा कि पहले लोग जंगलों में रहते थे और अपने खुराक के लिए इधर उधर भागते थे। फिर उसमें उन्होंने अस्थायी जीवन शुरू किया। स्थायित्व तो आया उनके जीवन में जब, तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक स्क्रिप्ट डेवलप किया। और इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब से उन्होंने लिखना सीखा, उस समय से हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, उसके पहले के समय को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो भाषा में भी सृजन किया जा सकता है। जैसे हम किसी चीज का सृजन, निर्माण करते हैं, उस तरह से भाषा के माध्यम से भी किसी चीज का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि वर्णनात्मक कोई चीज होती है या आप
इतिहास में पढ़ते हैं कि छुआछूत एक अच्छी बात नहीं थी। छुआछूत के चलते एक समाज को बहुत कुछ झेलना पड़ा। ये आप पढ़ते हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ ये गलत बात है। लेकिन उसी जगह पर जब प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं जब आप पढ़ते हैं तो आप अंदर से उद्वेलित हो जाते हैं। एक मतलब अजब तरह की अनुभूति होती है। तो ये कहानी में शक्ति ये है, किसी और साहित्य में, किसी और विषय में ये सब नहीं देखने को मिलता। साहित्य में आपको मिलेगा जब आप पढ़ते हैं। आपने देखा होगा, सिनेमा देखते हैं या कई बार कहानियां पढ़ते हैं तो आप रोने लगते हैं। ये उस भाषा की शक्ति है, वो जो सृजन किया गया है, निर्माण किया गया है, उसका ये। अब आई मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घटती हैं समाज में आपके साथ, वे समस्त कहानियां हैं। अब आपको उसको मूर्त रूप देना आना चाहिए और इसके लिए आपको स्वयं ही, अगर मैं, बहुत लोग बताते हैं कि कहानी लिखने का ये तरीका है या कविता लिखने का ये तरीका है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो उसका कोई तरीका नहीं होता। आप स्वयं इस पर चिंतन कर सकते हैं, इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, और यही आपकी ओरिजिनलिटी होती है, मौलिकता होती है। आपने देखा होगा कि हर कहानीकार, हर रचनाकार के कहने का ढंग जो होता है वह अलग होता है, वो, और वही उसकी मौलिकता होती है, उसकी पहचान उसी से होती है। तो इसलिए आप पढ़ें, कहानियां पढ़ें, रचनाएं जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि रचना होती क्या है या इसे किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। ये जानना तो जरूरी है, लेकिन आप निरंतर जब प्रयास करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तब जा करके आपकी रचना में परिपक्वता आएगी। आप एक बात मैं आपको बता दूं, लेखन में कोई भी पूर्ण नहीं होता। हम लोग खुद आज विद्यार्थी सीखते हैं बहुत सारी बातें। तो जैसे मैडम जैसे बहुत सीनियर लोग हैं, उनकी रचनाओं को या उनके द्वारा कही गई बातों को हम भी समझते हैं कि, और उसे उतारने की कोशिश करते हैं। तो रचनाकार, कोई भी रचनाकार पूर्ण नहीं होता। निरंतर सीखने की प्रक्रिया होती है, अनवरत प्रयास करने की प्रक्रिया होती है। और इसलिए जब भी आप अगर लेखन के साथ संतुष्ट हो जाएंगे, उसका मतलब है कि आपका जो प्रोग्रेस है, आपकी प्रगति है, वह रुक गई। प्रगति को रुकने नहीं देना है। और अभी इस उम्र में वो कहते हैं ना, बीज अंकुरित हो तो उसको अगर पूरा वातावरण नहीं मिले, न सूरज की रोशनी और ये, तब तक वो अंकुरित नहीं होता, फिर वो बड़ा होकर के पल्लवित, पुष्पित और फलित नहीं होता। तो आपके लिए ये उचित समय है। आप लोग जो कहते हैं, साहित्यकारों को सुनिए, साहित्यकारों को पढ़िए, कहानियां पढ़िए, निरंतर पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए। मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई पहले कि आप जब किसी भी चीज को लिखते हैं तो लिख करके उसे बंद कर दीजिए। 15-20 दिनों के बाद जब आप उसको खोल करके देखेंगे तो आपको अपनी ही रचना में बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ेंगी। तो ये कमियां आपकी नजर में आती हैं, यही आपको आगे बढ़ाएंगी। तो निरंतर आप लिखते रहिए। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो अच्छे साहित्यकार हैं वो अपनी रचनाओं को कई बार पढ़ते हैं, उसमें सुधार करते रहते हैं, और तब जाकर के उनकी रचना कालजयी होती है। मतलब लिखने के लिए बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन आप अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते
चाहते हैं तो आपको निरंतर लिखते रहने की जरूरत होगी, सीखते रहने की जरूरत होगी। आपके इर्द गिर्द जो घटनाएं होती हैं वो आपके दिमाग को उद्वेलित जब करती हैं तो आपके दिमाग में आता है कि इसको कहानी के रूप में कैसे प्रस्तुत करूं इस घटना को। तो उसके लिए आपके दिमाग में एक मतलब बवंडर पैदा होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जिस प्रकार माँ के गर्भ में बच्चा पैदा होने से पहले विकसित होता है, उसी तरह से साहित्यकार के दिमाग में जब किसी घटना जो अंकुरित होती है, अंकुरण के बाद से वो पलती फूलती है, बढ़ती है, और जब वो पूरी तरह से ऐसा होता है कि नहीं अब इसको रोक नहीं सकता, तो वह कागज कलम लेकर के बैठ जाता है और उसे पन्नों पर उतार देता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि खुद रचनाकार को भी कई बार आश्चर्य होता है कि क्या मैंने ही ये रचना लिखी है, मैंने ही लिखी है, क्योंकि उसको भी पता नहीं होता कि इस रूप में वह रचना ढल जाएगी। आपके दिमाग में प्लॉट तो तैयार हो जाता है, प्लॉट तो इर्द गिर्द बहुत कुछ है, लेकिन आपका इमेजिनेशन जो है, आपकी जो कल्पना है, वही उसका रंग है। उसको सुंदरता प्रदान करने के लिए जब तक कि आप कल्पना नहीं करते हैं, उस पर चिंतन नहीं करते हैं कि इसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाना है, तब तक वो रचना अच्छी नहीं होती है। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को यही कहूंगा कि आप के दिमाग में जो कुछ भी आता है, आप इर्द गिर्द जो कोई भी घटना देखते हैं, मैडम ने एक बात कही, कथोपकथन, डायलॉग, कथोपकथन कहानी को जीवंत बनाता है। आप सीधे साधे, अब वो समय नहीं है जो कहते थे ना कि एक था राजा, एक थी रानी, और ये था, और वो उनके साथ ही 4 बेटे थे या 5 बेटे थे, वो जंगल में गए, वहां ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसको कहने का अब वो तरीका खत्म हुआ। जैसे हर चीज में आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उस तरह से साहित्य के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो आप ये विकास किस दिशा में जा रहा है, कैसे हुआ है, इसको जानने के लिए आप वर्तमान साहित्य से जुड़े रहेंगे, तभी आप कुछ इसमें नया कुछ कर पाएंगे। और अपना चिंतन है कि इसको किस तरह से, बाकी सबने जो किया है चलो किया, लेकिन मैं इसको कैसे नया रूप दूं, किस तरह से ऐसा करूं कि जैसा किसी ने और ने नहीं किया होगा, तब आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो आप निरंतर लिखते रहिए, आप निरंतर पढ़ते रहिए। बिना पढ़े तो आप अच्छा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में भ्रम पलेगा। पहले मैं आपको एक अपना यथार्थ बताता हूँ कि बचपन में हम लोग सबसे लेखन शुरू होता है कविता लेखन से, ज्यादातर कविताएं लिखते हैं, और उस समय हम लोग छंदोबद्ध रचनाएं लिखते थे। छंदोबद्ध रचनाएं लिखने के बाद से हम बाकी जो को पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि उनमें और मुझ में अंतर क्या है, मैं भी लिख लेता हूँ वैसे, तो मैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको रियलाइजेशन होता है, आपको से स्वानुभूति होती है कि नहीं, जो उसने लिखा है उसमें बहुत कुछ है, हमारे में तो कुछ भी नहीं है। ये रियलाइजेशन तब होता है जब आप दूसरों की रचनाओं को पढ़ते हैं और अपना मूल्यांकन करते हैं। जब तक आप अपना खुद का मूल्यांकन स्वयं नहीं करेंगे, दूसरे जो कहेंगे, तो अब मैं अगर कह दूं सीधे तौर की आपकी कहानी ये गलत है, वो तो आपको बुरा लग सकता है कि भाई सर ने तो सीधे तौर पर मुझे नकार दिया, मेरी कहानी को इस तरह से कर दिया। लेकिन नहीं, आप स्वयं उसका मूल्यांकन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, कहाँ मेरी कमी रह गई है। फिर आपको बढ़ने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप निरंतर लिखते रहिए, और आप लोगों के बीच जो आप लोग बैठे हुए हैं, भावी साहित्यकार बैठे हुए हैं, कहानीकार बैठे हुए हैं, और आप पर साहित्य
को समृद्ध करने का दायित्व है। आप लोगों को मेरी तरफ से एक बार पुनः बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है बच्चों को काफी कुछ समझ आया होगा। इसी से मैं आपकी एक बात उठाऊंगी कि जैसे सर ने बोला कि आप कुछ नया ढूंढे, और हमारी जो कहानी के रूल्स और नियम हमने आप लोगों को दिए थे उसमें वैसे ओपन थीम थी कि आप कुछ भी कहानी लिख सकते हैं, परंतु हमने एक आइडिया भी दिया था कि जो जिस भी स्टेट में या सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ का कल्चर या वहाँ का रिलीजन उस पर बात करें, माइथोलॉजी। सो जो हमें कहानियां आई, बच्चों ने क्या किया कि जैसे के जैसे उन्होंने पढ़ा वैसे के वैसे उतार दी। सो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब किसी माइथोलॉजी या कल्चर पे हम बात करते हैं तो उस चीज को कहानी के अंदर अपने कैसे उसको वीव करके उसको उभारा जाए ताकि बच्चों को एक नई चीज मिले। क्योंकि हम जैसे जॉनरे की भी बात करते हैं कि आपने मिस्ट्री, फिक्शन, रोमांस, फिर कोई भी साइंस फिक्शन उठा लिया, परंतु इन चीजों को कहानी में कैसे लाया जाए, ढाला जाए, तो उस पर आप बताएं। डीप क्वेश्चन। ओके, हम माइथोलॉजी की स्टोरी या फोक स्टोरी हम पढ़ते हैं। माइथोलॉजी स्टोरी usually throughout India almost the same. But coming to the present time, we have to make some changes at certain times. Then we cannot write the same thing over and over again. अब रामायण है, रामायण में कहानी है, महाभारत में तो कहानियां ही कहानियां हैं, मगर हम वहां से उठा के वैसे नहीं कर सकते। अब एक आपको एग्जाम्पल देते हैं कि इसको हम किस तरह आज के उससे चेंज करते हैं। महाभारत में एक कैरेक्टर है चित्रांगदा। शी वॉज फ्रॉम मणिपुर, शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ मणिपुर। शी was she grew up as a boy almost, but one day when she used to go for hunting because the king did not have a son, so he trained her as a boy. And then what happened? One day she goes to the forest for hunting and all. She was wearing men's clothes. At that time, she saw Arjuna. Arjuna and the five Pandavas, they were on exile. तो देश निकाला था ना, वो तो घूम रहे थे इधर उधर, तो अर्जुन वहाँ पहुंचे। And she thought, this is a person I would like to marry. And she discarded her men's clothes. She wore women's clothes and she went to the temple of Kamdev and she said, just change me into a beautiful woman. And see now, this is the theme. Later on, she married Arjuna. They had a son, Babruvahan, and that son also was very much important. He played an important role in the Mahabharata. अर्जुन तो छोड़ के चला गया। इसके ऊपर कईयों ने कहानियां लिखी। इसके ऊपर टैगोर का बहुत बढ़िया प्ले है चित्रांगदा, बहुत खूबसूरत प्ले है। उन्होंने बंगाली में लिखा, उसके 3-4 अलग अलग वर्जन ट्रांसलेशन में, हमने तो ट्रांसलेशन में पढ़ा। अब आप बोलेंगे वो एक कहानी है, उसको किस तरह टैगोर ने आज के संदर्भ में लिखा। उसके ऊपर मैंने जब काम किया तो मैंने उसको I saw Chitrangada as a modern woman who could say to the man that I want to marry you, who looked after the kingdom, and she had a son and she was a single mother. अब सिंगल मदर का कंसेप्ट यहाँ पे है, आजकल आ रहा है. So she was a single. Now see, what I want to drive at is, according to the modern times, we can change. Theme remains the same, but its structure and its appeal, its plot, थीम तो वही है, मगर प्लॉट चेंज हो जाता है और हम वैसा का वैसा नहीं लिखते. हमारे अपनी आज के जो फीलिंग्स हैं वो उसमें चले जाते हैं और वो नहीं गए तो वो एक डेड स्टोरी होगी. तो इस तरह माइथोलॉजी का, अब आपने ये देखा, अगर आपने किसी ने नाम सुना होगा देवदत्त पटनायक, अगर आपने नहीं सुना तो आप पढ़िए उनका. ही राइट्स वेरी वेल, ही राइट्स ऑन माइथोलॉजी. उन्होंने क्या किया, राम, कृष्ण और ये जो हमारे और भी बड़े बड़े जो भी अवतार हैं या जो लीडर रहे हैं,
उनकी लीडरशिप को आज की लीडरशिप के साथ जोड़ा और उन्होंने कॉर्पोरेट लेक्चर्स दिए इसके ऊपर उनकी लीडरशिप। अब एक है क्या था नाम उसका, ही इज राइटिंग अ लॉट ऑफ माइथोलॉजिकल स्टोरीज। अमीश अमीश। अब चेंज कैसे किया ये आपको तब पता लगेगा जब आप एक बुक पढ़ेंगे। फोक तो टेल्स आती हैं हमारे पास, हम उसको चेंज नहीं करते, उसका बेसिक वही रहता है, स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, डायलॉग चेंज होते हैं, सेटिंग वही रहेगी, लैंग्वेज चेंज होती है। All these, every story has got a structure. It has got theme, it has got plot. प्लॉट क्या चीज़ है?